हेलो ब्रदर जी। हेलो जी। हाँ जी, ठीक ठाक जी। ठीक ठाक और तुसी सुनाओ? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है। तुसी सुनाओ? बस ठीक ठाक जी। ज़रा बस इंतज़ार कर रहा थी मैं। अच्छा कितने छेती नहीं गड्डी नहीं ना अज मेरे को, हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਐਮਓਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋ ਤੇ अच्छा ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ। मैं बड़ी देर ਹੋਰ तक ਕਿੱਦਾਂ? खलोता देख ਤੁਸੀਂ? रहा है दुनिया किस तरह रबड़ दबड़ मची कोई इधर जा रहा है। ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਹੈ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ हाँ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਹੈ। जी जी जिस तरह रेलवे गड्डी चल रही है, कोई चल दुनिया रहा है, चढ़ रही है, बैठ रहा दुनिया है। उतर रही है। इसी तरह आजकल बसा हो गया। मिसाल सी गड्डी दी तो अजीज भाई जी इतने इस तरह ही चल रहा है। अच्छा 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 ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। और की हो रहा है ਹਾਂਜੀ आजकल? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਬਸ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਨਾਬ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਲਿਬਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ अच्छा ऐसे उत्थे गए सी तुसी? हाँ, उत्थे वाह, गए। जबरदस्त ਹਾਂਜੀ जी। ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੇ 152 ਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਚਾ, हाँ जी। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਬਸ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੜਨੀ ਹੈ? बस नहीं, मेरा बेटे ने बस स्टॉप ते आना अच्छा, है, अच्छा, मैनू मैं इतो तो पिक बस- करना बस पिक फड़नी। करना ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆ बस। ਰਹੀ ਹੈ? 120 देखो ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ 152 ਫੁੱਟ ਤੇ ਉੱਚਾ ओए हो ਤੇ अच्छा ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਉਹ 150 ਫੁੱਟ ਦਾ। इन्ना उच्ची बनाया। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ देखो जी, ਲੱਭ आज़ादी ਰਿਹਾ दे ਹੈ। निशान ने, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। आज़ादी दे ਹਾਂਜੀ। निशान। हाँ जी। ਤੇ ਬਸ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। नहीं लेकिन मैनू नहीं समझ भी कदों कदों बनया सी ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੂੰ, ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਪੂਰੀ ਮੁੱਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा 100 साल की आज़ादी। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। राइट राइट राइट। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ अच्छा उन्होंने गिफ्ट दिता सी फ्रांस वाला ने। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ अमेरिका ने। ਕਰਕੇ ਨਾ हाँ हाँ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ अच्छा statue। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। फ्रांस ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। अच्छा 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 हाँ जी। that's ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ लेकिन आज़ादी नहीं मिल रही। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ठीक है ना, वक्त और चलता जा सुकून रहा नहीं है। है। और मैं देख ਬੱਚੇ ਇਹ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ speed ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਨਾਲੇ speed ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੰਘਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਹਾਂ। ਤੇ ਓਹੋ। ਚਲੋ ਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੇਖਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਸ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ 120 ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ E5 अच्छा ਸੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। चले देखते हैं कि कोई आती है हाँ जी, बस हाँ जी। ये दुनिया। हाँ जी। मैं भी देख रहा हूँ कि ये अच्छा। बिग बैन ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੂਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਂ ਵਕਤ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਉਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੂਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਔਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਡਾ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਕਿਤੇ ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਲੰਘੋ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਉਹ ਓਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਬਸ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਮਾਲੂਮਾਤ ਮੇਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ, thank you। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ, Yeah। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਚਲੋ
I hope you don't mind if I take this seat. Oh yeah, please. Oh, gosh. Oh, I'm so sick of life. तंग आ गई मैं जिंदगी तो मैं तंग आ गई हूँ जिंदगी से बीमार मैं हूँ थक मैं गई हूँ मैं क्या करूँ परेशानियों ने मुझे घेर रखा है इसमें 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 सारे मेरे शक हैं मुझे मेरे ईमान पे मुझे शक होने लगा है मुझे अपने ऊपर शक है ये कब तक मेरे शक मेरे साथ रहेंगे कब तक ये मेरे शक मेरे साथ रहेंगे तुझे कौन सी परवाह है तू तो ऊपर बैठा है चुप करके तुझे कौन सी परवाह है ये शक मेरे ही है ना काश के तू नीचे उतर कर आके देखे इन शकों ने मुझे बर्बाद कर दिया है मुझे तो अपने ईमान पे शक होने लगा है अपने ऊपर शक होने लगा है बाइबल में पढ़ती हूँ ना जैसे तूमा शक करने लगा था उसी तरह अपने आप पे शक करने लगी हूँ किसी पे भी मेरा भरोसा नहीं रहा और इसमें 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 मेरे सारे सवाल मेरे सारे क्वेश्चन इसमें भरे हुए हैं लेकिन तुझे क्या तू तो खुदा है सवाल तो मेरे हैं ना तेरा इससे क्या वास्ता तूने आज तक मेरी कभी सुनी है जो मेरा जवाब देगा मेरे सारे सवाल हैं कब मुझे नौकरी मिलेगी कब मेरी इमिग्रेशन होगी कब मैं वहां जाऊंगी यहाँ जाऊंगी कब मेरा काम होगा तुझे थोड़ी ना मेरी फिक्र है वैसे मुझे तुझे खुदा इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है इतने सारे लोग हैं आखिर तू किस किस की सुने ये बोझ तो हमारे हैं ना क्योंकि तूने हमें पैदा किया है हम इस दुनिया में रहते हैं ये बोझ हमारे हैं ये शक मेरे हैं ये सवाल मेरे हैं तेरा तो इसमें कुछ नहीं ना तो उठाने दे हमें हम उठाएंगे जब तक तू जिंदा रहेगा रखेगा हमें उठाएंगे हम उठाएंगे और ये सबसे बड़ा बोझ है मेरे ऊपर ये सबसे बड़ा बोझ है इसमें मेरे सारे रिग्रेट्स हैं मेरे सारे पछतावे मेरे साथ हैं मैं कितना भी पीछा छुड़ाना चाहूं छुड़ा नहीं सकती इसमें मेरे सारे परेशानियां हैं जो बातें मैंने दूसरों के लिए कही हैं सारी मेरे साथ रहती हैं तू तो खुदा है ना लेकिन मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती मैंने जो दूसरों के लिए इतनी बातें की हैं जो मैंने इतने बुरे काम किए हैं जो मेरी पिछली गुजरी हुई जिंदगी है ये मेरे साथ रहती है इसलिए तो ये सबसे बड़ा और भारी बोझ मुझे दबाए रखता है मेरी गुजरी हुई जिंदगी मेरे साथ साथ रहती है तू तो खुदा है ना तुझे क्या पता तू तो आसमान पे रहता है ना और हम जमीन के लोग हैं हेलो सिस्टर मैं आपसे बात नहीं कर रही मैं आपसे बात नहीं करी सॉरी आपसे बात नहीं करी मैं इनसे पीछे छुड़ाना चाहती हूँ खुदा तुझे क्या लगता है ये सारी बातें ये सारी चीजें मैं अपने साथ हमेशा ऐसी तरह लेके घूमती रहूंगी मैं पीछा छुड़ाना चाहती हूँ लेकिन तुझे मुझे पता है मेरी कोई फिक्र नहीं है आखिर तू खुदा है किस किस का बोझ उठाएगा मैं ये करूं वो ना करूं इसे बोलूं या ना बोलूं मैं ज्यादा बोल दूं ये सब कुछ मेरे साथ रहता है लेकिन मैं एक बात बताती हूँ खुदा मैं इंतज़ार करूंगी मैं इसी तरह से बोलती जाऊंगी मैं इंतज़ार करूंगी एक दिन तो ज़रूर मेरी दुआओं का जवाब देगा तो ज़रूर मुझसे बात करेगा ज़रूर मुझसे बात करेगा मुझे पता है
मुझे पता है मैं इन सारी चीज़ों से और ये सारा सब कुछ मेरे साथ है, ये सब कुछ सारा बोझ मेरे साथ है, हर वक्त मेरे साथ है ये। मैं क्या करूं, किसको दूं ये सारा बोझ? मेरे सवाल, मेरी उम्मीदें और जो मैं आने वाले वक्त के बारे में सोचती हूँ, ये सब कुछ मैंने इसमें समेट लिया है। ये भी मेरे साथ है, ये भी मेरा बोझ है, ये सारा मेरा ही बोझ है। मैं उठाऊंगी इसे, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। मैं उठाऊंगी सारे बोझ को, इसी तरह से उठाऊंगी और मैं इंतज़ार करूंगी, क्योंकि तूने कहा ना जो मुझ पर भरोसा रखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। मैं रखूंगी भरोसा। मुझे सिखाना होगा आपको मैं कैसे आप पे भरोसा रखूं, मुझे सिखाना होगा आपको। लेकिन तब तक, जब तक आप मुझसे बात नहीं करते, ये सारा बोझ मैं खुद ही उठाऊंगी। मैं उठाऊंगी, आई डोंट नीड हेल्प। मैं उठाऊंगी, मैं चलती जाऊंगी, मैं उठाऊंगी, मैं सारा खुद ही उठाऊंगी। हेलो सिस्टर, कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? व्हाट काइंड ऑफ हेल्प? ये मेरी चीजें हैं, मैं ही उठाऊंगी, आपने क्या हेल्प करनी है? किधर उठा के लेके जा रहे हैं? जाऊंगी बस पे, अभी जाऊंगी बस पे। रोज जाती हूँ, इसी तरह से जाती हूँ। कोई मेरी मदद नहीं करता, ना ही आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आप जिससे दुआ कर रहे थे वो तो कर सकता है बहन आपकी मदद। लेकिन रोज तो नहीं कर सकता। ये चीजें तो मेरे साथ रहेंगी, मदद तो करता है, लेकिन मैं इंतजार करूंगी जब वो इतना मैं इंतजार पहना करूंगी। हुआ है बहन, और गले में मैं क्रॉस भी डाला हुआ है, और बाइबल क्रॉस तो की इसलिए डाला हुआ है ना कि वो आयात मेरी भी बोल सुनेगा। रही हैं और साथ शक भी कर रही हैं। क्या करूं, बस आ जाएगी, बस अब चली जाऊंगी। आप फिक्र नहीं करें, ये मैं मैनेज कर लूंगी, हमेशा मैनेज करती हूँ, कर लूंगी, फिक्र नहीं करें आप। फिक्र की तो बात है कि एक तो शख्स होता है ना जिसे पता नहीं होता। आप मसीहत को मेरा ख्याल जानती भी, लगता है मुझे जानती हैं, और चर्च की अब घंटी बज रही है, तो बहन क्यों ना आज चर्च हो रहा है तो मैं आपको चर्च में लेके जाऊं, वहाँ आप मेरे साथ आप चले। आपको जो बोझ आपने उठाया हुआ है, जो शक है, चर्च जाना है तो मेरे दिल तो करता है जाने को। हाँ। मैं हर वक्त कहती हूँ, मैं शर्माती नहीं हूँ। अच्छा। जहाँ कहीं भी मैं बोल देती हूँ। हाँ, खुदा हाँ, मैं इंतजार करूंगी। हाँ, हाँ, तो जरूर अच्छा, इंतजार का मुझे फल देगा। ये देखिए, ये ना मैं आपको दिखाता हूँ। आप चर्च में आए और चर्च में आज मीटिंग है। हाँ। बहुत अच्छी मीटिंग है, और इसी टॉपिक में ना हाँ। जो शक है, शुबह है, हमारा बोझ है, किस तरीके से हमने अपने बोझ को खुदा पे देना है, ये क्रॉस जो हमने गले में डाली हुई है बहन, किस तरीके से हमने इसको वाकई अपने दिल में रखना है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये चीजें तो मेरी है ना। जब तक मैं दुनिया में हूँ मुझे खुद ही उठाना होगा ना, खुद ही साथ रखना होगा। इसे कौन उठाएगा? तो जीसस ने तो मुझे पता है अपनी जान दी है, तो हाँ। कोई बात नहीं, वो तो दी है, लेकिन ये बोझ थोड़ी ना उठाने के लिए दी है मुझे, ये खुद उठाना ही पड़ेगा मुझे। बोझ उठाने के लिए तो उसने जान दी। मेरे फिक्र जो मैंने लोगों को बुरा किया उससे मुझे कभी माफी नहीं। आपने बाइबल नहीं पढ़ी? मैं चलती हूँ, चलती पीछे मैं जाती हूँ, मुझे जाने। आप चर्च नहीं जाएंगे मेरे साथ? अभी थोड़ा टाइम है, मेरे ख्याल आज बसों का भी कुछ प्रॉब्लम है, तो टाइम है, तो चलो चलते हैं, आप हमारे साथ चलें। तो आप देखना कि खुदा किस तरीके से हमारे बोझ उठाता है, क्योंकि वहाँ पे कलाम में बहन ये लिखा है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पे डाल दे, क्योंकि मैं तेरी फिक्र करता हूँ। कौन कहता है ऐसा? जब तक हम अपनी सारी फिक्रें उसे देंगे नहीं, वो हमारी फिक्र नहीं करता। वो इस बात की फिक्र करता है कि हम अपने सारी वरीज उसको दे दें। नहीं, मेरे बच्चों की फिक्र मुझे है, वो खुदा को कैसे पता, मैं उसको कैसे दे सकती हूँ? मेरी बच्चों की मुझे फिक्र है, मुझे फैमिली की फिक्र है, तो बच्चे जिसने दिए हैं उसको ज्यादा फिक्र होती है मेरी बहन। नहीं, लेकिन उसने तो दे दिए, ये तो ब्लेसिंग है, मैं जानती हूँ। ब्लेसिंग है। नहीं, ये बातें तो सारी मेरी है ना, मैंने हैंडल करनी है, मैंने कैरी करना है। भाई अब कैसी बात कर रहे हैं, बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। नहीं, बच्चों जैसी बात नहीं करते। सफेद नहीं किए, मुझे सब पता है। आज आप चर्च की छांव में बैठ के देखे, आए हमारे साथ चले चर्च में। धूप में ठीक है, आपने बाल सफेद नहीं किए। मुझे हाँ बिल्कुल, वे ऐसे नहीं समझे कि ये तो हमेशा मेरी माँ भी ऐसे उठाती थी। हाँ। मैं भी ऐसे उठा रही हूँ, मेरी बेटी भी ऐसे उठाएगी। हाँ। और क्या, ये तो उठते ही, हम उठाते ही रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बोझ आप कब तक उठाते रहेंगे? जब तक मैं रहूंगी इस दुनिया में। साथ रोते भी रहेंगे और खुदा से दुआ भी करते रहेंगे, गिले भी करते रहेंगे, शक भी करते रहेंगे।
है ना? तो मेरी बस आ गई है तो चलो अच्छा चलो ठीक है ओके हाँ ट्राई वंस मैं आपको ना ये देखो बहन, ये देखना आप, इसमें देखना आप, ये देखना, ये मैसेज सुनना आप, ठीक है? चले मेरे चल चले चले हाँ, चले मेरे हाथ बताएं प्लीज ये मुझे उठाएं 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 ये भी लेके जाना सारा कुछ सारा चर्च में ऐसे ही जाना हंसेंगे तो आज नहीं बोझ दे के आना हमने। अच्छा चलो चलो अच्छा हाँ जी चलो कहा इतना भारी? नहीं कुछ नहीं मेरी तो आदत सी बन गई है अब खुदा का कलाम हमें बताता है कि गुनाह की वजह से सारी जमीन और उसके रहने वाले लानत के नीचे आ गए। चुनाचे लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। अब क्योंकि सब ने गुनाह किया लिहाजा सब लानत के नीचे आ गए और खुदा से बहुत दूर चले गए। कोई भी इंसान चाहे वो नबी हो, बादशाह हो, पीर हो, वली हो, मजहबी लीडर हो, कोई भी क्यों ना हो, इस लानत से इंसानों को छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि सब उसी आदम की नस्ल से हैं जो लानत के नीचे आ गया। लिहाजा अच्छे से अच्छा इंसान भी इस लानत से आपको और मुझे नहीं छुड़ा सकता। सवाल यह था, क्या कोई ऐसी हस्ती है जो आदम की नस्ल से ना होने और अपने अंदर लानत से पाक खून होने की वजह से इस लानत से छुड़ा सके? खुदावंद यीशु मसीह उस वाहिद हस्ती का नाम है जो एक कंवारी के बतन से जन्म लेने की वजह से आदम की नस्ल से नहीं, और उसका खून भी पाक लानतों से छुड़ाने वाला खून है। जिस रोज सारी यहूदी कौम मूसा की शरीयत के मुताबिक बैलों और बछड़ों की कुर्बानियां गुजरान रही थी, उस रोज आपकी और मेरी लानत उठाने के लिए खुदा का बर्रा यीशु मसीह, वो पाक खून वाली हस्ती, सलीब उठाकर यरूशलेम की गलियों बाजारों में से गुजर रहा था। खुदा के अटल कवानीन के मुताबिक सलीब उठाना एक लानती शख्स का काम था। उस मोहब्बत के समुंदर ने जो लानती सलीब उठा रखी थी, मेरे भाई और बहन, वो तेरी और मेरी सलीब थी। वो हमारी ही लानत थी। वो कोड़े जो उसके बदन पर बरसाए जा रहे थे, वो हमें लगने चाहिए थे। अगर कोई इंसान भी किसी इंसान के लिए ये सब कुछ करता तो ये उल्फत और मोहब्बत होती। मगर आपको बताना चाहता हूँ कि वो हाथ जिनमें वो कील ठोके गए कायनात के मालिक के हाथ थे। वो चेहरा जिस पर थूका जा रहा था, वो सबके चेहरे बनाने वाले का चेहरा था, क्योंकि सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत की इंतहा। उसने उल्फत की इंतहा की है, उसने उल्फत की इंतहा की है। बेवफाओं से भी वफा की है, उसने उल्फत की इंतहा की। बिच्छू का था गुनाह के हाथों में, बिच्छू का था गुनाह के हाथों में। उसने कीमत मेरी अदा की है, उसने कीमत मेरी अदा की है।
दर्स सीखा है फिर मोहब्बत का, दर्स सीखा है फिर मोहब्बत का। तेरी सूली पे जब निगाह की है, तेरी सूली पे जब निगाह की है। ऐसा मर्दे दुआ नहीं देखा, ऐसा मर्दे दुआ नहीं देखा, जिसने सूली पे भी दुआ की है, जिसने सूली पे भी दुआ की है। तेरी खातिर वो खताकार हुआ, तेरी खातिर वो खताकार हुआ, जिसने हरगिज़ नहीं खता की है, जिसने हरगिज़ नहीं खता की है। बेवफाओं से भी वफा की है। मैंने तुझसे ऐसे बातें की खुदा, मेरे सारे बोझ तूने तो स्लीप पे उठा लिए, मैं क्यों इन्हें लेकर चलती रही। ब्रदर मेरी दुआ सुन ली है ना खुदा ने। आज आपके जो आंसू बहन, पहले तो आप इस बोझ के साथ आंसू बहाते थे, आज अपने स्लीब के सामने हम अपने आंसू बहाए हैं, तो क्यों ना बहन इस बोझ को आज ही छोड़ दो, यहाँ पे बस यहीं छोड़ दो, क्योंकि वो स्लीब के आपने देखा, कलाम सुना, गीत सुना, क्यों तेरे लिए मेरे लिए, ये हमारे लिए तो उसने ये सारा दुख सहा, ताकि ये बोझ उठाते ना रहें। उसने खुद ही वो स्लीब का बोझ उठा के चलना शुरू कर दिया, हमारा बोझ खुद ही उठा लिया। सच कलाम बहन ये कहता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो उसने हमारी खातर सलीब उठाई, हमारे गुनाहों को उठा लिया, हमारी कमज़ोरियों को ले लिया उसने। थैंक यू लॉर्ड। तो क्यों ना हम उसे कहें कि बाप तेरा शुक्र हो, जैसे बहन आज आपने एक खुदा के सामने अपने दिल को खोला है और बाप ने आपके दिल को हल्का कर दिया है। सच में आपके चेहरे से भी लग रहा है, जब आप यहाँ पे चर्च आने से पहले मैंने आपको देखा बस स्टॉप पे, तो आपका कुछ और तरह की कंडीशन थी, लेकिन आप नाउ यू आर सेटिस्फाइड, काम एंड क्वाइट एंड हैप्पी। सो लाइट, और मेरा सर इतना हल्का हो गया और दिल तो बहुत ही हल्का हो गया, ऐसे लगता है जैसे रोशनी आ गई है। आमीन आमीन। तो क्यों ना हम इस बोझ को छोड़कर चले बहन, घर चलते हैं, वहाँ बैठ के खुदा का शुक्र अदा करते हैं, है ना। ठीक, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।